السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا نام محمد عدنان سہیل ہے۔ اس نئی ویڈیو میں پھر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیسیمل، بائنری اور ہیکسا ڈیسیمل کو سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پروگرامنگ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، پہلے وہ جو بائنری کو سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے جو بائنری کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ سکے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں سمجھ جائیں گے۔ فی الحال ابھی ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کو ہم سب یقیناً جانتے ہیں، وہ ہے گیگا بائٹ۔ آپ یقیناً اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، ہمارے تمام موبائل فونز میں کسی مخصوص مقدار کی گیگا بائٹ پائی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو تو بائنری ڈیسیمل اور ہیکسا ڈیسیمل کے بارے میں ہے، پر ہم اس گیگا بائٹ کے بارے میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم ان سب پر بھی آتے ہیں، مگر ڈیٹا یونٹ یعنی گیگا بائٹ وغیرہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ 1024 میگا بائٹ مل کر گیگا بائٹ بنتا ہے، 1024 کلو بائٹ مل کر میگا بائٹ بنتا ہے۔ آپ کے خیال میں کلو بائٹ کیسے بنتا ہے؟ 1024 بائٹ مل کر کلو بائٹ بنتا ہے۔ بائٹ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، 8 بٹس مل کر بائٹ بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، 8 بٹس مل کر بائٹ بنتا ہے۔ جب ہم ایک بائٹ کو آدھا کاٹتے ہیں تو ایک نبل بنتا ہے، مطلب 4 بٹ مل کر ایک نبل بنتا ہے۔ یہ کتنی مذائقہ خیز بات ہے، آپ خود گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، یہ سب ڈیٹا یونٹ کہلاتے ہیں۔ یہ سب معلومات آگے ویڈیو میں استعمال ہوں گی، اس لیے ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نمبر سسٹم، جیسے کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے۔ ہم جو سسٹم استعمال کرتے ہیں وہ بیس 10 سسٹم ہے، مطلب اس میں 10 نمبرز ہوتے ہیں، یعنی 0 سے 9 تک۔ ظاہر ہے ہم ان کو ملا کر اور دوسرے نمبرز بناتے ہیں، اسے ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں۔ اسی طرح بائنری ایک نمبروں کا سسٹم ہے جس میں بیس 2 سسٹم استعمال ہوتا ہے، مطلب اس میں صرف 2 نمبرز ہوتے ہیں، یعنی 0 اور 1۔ جبکہ ہیکسا ڈیسیمل میں بیس 16 سسٹم استعمال ہوتا ہے، مطلب اس میں 16 نمبرز ہوتے ہیں، یعنی وہی ڈیسیمل کے 10 نمبر 0 سے 9 تک، مگر اس میں آگے الفابیٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی اے سے ایف تک۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اے سے ایف تک ویلیوز وہی ہوتی ہیں جو ڈیسیمل میں ہوتی ہیں، مطلب 10 سے 15 تک۔ بائنری اور ہیکسا ڈیسیمل کمپیوٹر کی دنیا میں استعمال ہونے والے سسٹم ہیں اور پروگرامنگ میں ان دونوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آگے اس ویڈیو میں ان تینوں سسٹم کا ایک دوسرے سے موازنہ کریں گے اور ایک دوسرے میں کنورٹ یعنی تبدیل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیسیمل سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر اس بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ سسٹم ہم نے پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا ہے۔ اگر ہم بیس 10 سسٹم کے 231 کو 3 چینلز میں ہر نمبر کو اس طرح لکھیں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ نمبر 2 ہنڈریڈز کی جگہ آئے گا، 3 ٹینس کی جگہ آئے گا اور 1 1 کی جگہ۔ اس طرح یہ ہوگا 200، 3 ٹینس اینڈ 1 ونس۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تمام نمبرز کی ہیڈنگ نمبر کا بیس 10 ہے، جبکہ پاور 0 سے ایک نمبر بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اس کو بیس 10 نمبر سسٹم کہتے ہیں۔ اگر ہم یہی ڈیسیمل نمبر بائنری میں لکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ بائنری میں بیس 2 نمبرز ہوتے ہیں، اس لیے ہم ڈیسیمل کو 2 سے تقسیم کر کے اس کا بائنری حاصل کر سکتے ہیں، جیسے اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیسیمل کی ہر تقسیم کے بعد جو ریمائنڈر بچتا ہے وہ بائنری ڈیجٹ ہوتا ہے۔ جو آخری ریمائنڈر ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے لکھتے ہیں، اس طرح اس سے پہلے والا، پھر اس سے پہلے والا وغیرہ۔ اس طرح نیچے سے اوپر ہمیں پورا بائنری نمبر مل جاتا ہے، جیسے یہاں 11100111 بائنری شکل میں حتمی نتیجہ ہے۔ اگر ہم یہی بائنری نمبر ہیکسا ڈیسیمل میں لکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں۔
हर हेक्साडेसिमल का एक नंबर बाइनरी के 4 बिट यानी नंबर्स के बराबर होता है। इसलिए हम 8 बिट के बाइनरी को दो 4 बिट वाले चैनल्स में इस तरह लिखेंगे कि हर 4 बिट का बाइनरी अलग अलग हेक्साडेसिमल के बिट में कन्वर्ट या मुंतकिल हो सके। हम जानते हैं कि बाइनरी बेस 2 नंबर सिस्टम है, इसलिए यहाँ तमाम बाइनरी नंबर्स की हेडिंग का बेस 2 है, जबकि इनकी पावर 0 से 1 बढ़ती जा रही है। इसलिए इस सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारे नंबर्स में जो बाइनरी बिट 1 होगी, इसकी हेडिंग वैल्यू को हम ले लेंगे और तमाम को ऐड यानी जमा करेंगे। हमें जो नंबर हासिल होगा वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होगा। यहाँ हमारा एक रिजल्ट यानी नतीजा 14 है और दूसरा 7। अब हम एक बहुत ही अहम चीज पढ़ेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 के बाद 6 और अल्फाबेट वैल्यूज होती हैं। A, B, C, D, E, F। मतलब A की वैल्यू होगी 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15। इस तरह हम तमाम हेक्साडेसिमल की वैल्यूज को समझ सकते हैं। हमारा एक रिजल्ट 14 था, मतलब हेक्साडेसिमल में 14 की जगह E लिखेंगे और 7 तो है ही हेक्साडेसिमल वैल्यू, तो वो वही रहेगा। इस तरह हमारा आखिरी या हतमी रिजल्ट हेक्साडेसिमल की शक्ल में E7 होगा। अगर हम यही हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में दोबारा मुंतकिल करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हेक्साडेसिमल के हर नंबर की वैल्यूज को डेसिमल वैल्यूज में बदलेंगे। फिर बेस 2 के दो अलग चैनल्स की हेडिंग्स इस तरह लिखेंगे कि इनको ऐड या जमा करने से हमारा हेक्साडेसिमल की डेसिमल वैल्यू के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पहली वैल्यू 14 2, 4 और 8 को ऐड या जमा करने से हमें मिली है और दूसरी डेसिमल वैल्यू 1, 2 और 4 को ऐड या जमा करने से हमें 7 वैल्यू मिलती है। फिर हम इन दोनों चैनल की हेडिंग जो ली थी में 1 लिखेंगे और जो नहीं ली थी उनमें 0 लिखेंगे। इस तरह हमें हतमी नतीजा बाइनरी शक्ल में 11100111 दोबारा मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। इसके लिए हम एक 8 बिट के चैनल में अपनी बाइनरी नंबर की वैल्यूज लिखेंगे। फिर इन बिट्स की हेडिंग्स हम लेंगे जिनमें वैल्यू 1 है। फिर इन ली हुई हेडिंग्स को ऐड या जमा करके हम अपना डेसिमल वैल्यू हासिल कर लेंगे। जैसे यहाँ 231 यानी 231 हमारा हतमी नतीजा है। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल में बेस 16 नंबर्स होते हैं, इसलिए हम ये डेसिमल को 16 से तकसीम करके इसका अगला डेसिमल हासिल करेंगे और पिछले डेसिमल को 16 से मॉड करके इसका हेक्साडेसिमल की डेसिमल वैल्यू हासिल कर सकते हैं। जैसे इस मिसाल में आप देख सकते हैं, यहाँ मॉड रिमाइंडर हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो हेक्साडेसिमल की डेसिमल वैल्यू है। जो आखिरी रिमाइंडर होता है इसको सबसे पहले लिखते हैं और इस तरह इससे पहले वाला, फिर इससे पहले वाला वगैरह। इस तरह नीचे से ऊपर हमें पूरा हेक्साडेसिमल की डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम हेक्साडेसिमल वैल्यू में मुंतकिल करेंगे, जैसे हम पहले इस वीडियो में देख चुके हैं। इस तरह हमें हतमी नतीजा हेक्साडेसिमल की शक्ल में E7 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर सिस्टम है, इसलिए यहाँ तमाम नंबर्स की हेडिंग नंबर बेस 16 है, जबकि इनकी पावर 0 से 1 नंबर बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको बेस 16 नंबर सिस्टम कहते हैं। चूंकि हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू 2 बिट है, इसलिए यहाँ 2 बिट के चैनल में हमने ये वैल्यूज डाली। यहाँ हेक्साडेसिमल वैल्यू E है और हम जानते हैं E की डेसिमल वैल्यू 14 है, इसलिए इसे हम 16 से ज़रब करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि 7 क्योंकि 1 बिट में है, इसलिए ये 7 ही रहेगा। आखिर में हम इन दोनों को जमा या ऐड करके अपनी डेसिमल वैल्यू हासिल करेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल 231 का हतमी नतीजा हमें मिल गया है। हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम बहुत ही बड़ा नंबर बहुत ही कम बिट्स में महफूज कर सकते हैं। इसको हम अगली मिसाल में देखेंगे।
इस मिसाल में हमारा हेक्साडेसिमल नंबर 3 बिट्स का है। जब हम इसको उसी तरह कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हमने पिछली मिसाल में देखा था, तो हमारा हासिल नंबर बहुत ही बड़ा है, मतलब 8E7 बराबर होगा डेसिमल के 2279 के। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने 3 हरूफ से 4 हरूफ को बयान किया है, जो बहुत ही जबरदस्त है, जबकि बाइनरी में ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे एक बाइट का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ एक बाइट के हर चैनल में बाइनरी का 1 डाला जाए तो इन की बेस 2 हेडिंग को जमा करने से जो नंबर हासिल होगा वो 255 होगा। अगर आपने कभी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया है या वेब डिजाइन का काम किया है या कोई भी प्रोग्रामिंग की है तो आप इस नंबर को जानते होंगे, जो रंगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी RGB कलर्स। RGB कलर्स में हर चैनल रेड, ग्रीन, ब्लू की इंतहा वैल्यू 255 होती है। हर कलर पिक्चर में एक वैल्यू महफूज होती है जो इस कलर को बनाती है। मिसाल के तौर पर रेड यानी लाल रंग को हासिल करने के लिए आप लाल वाले चैनल को इंतहाई यानी 255 रखते हैं और हरे यानी ग्रीन और नीले यानी ब्लू के चैनल को कम से कम यानी 0 रखते हैं, जिससे हमें लाल रंग मिल जाता है और हर पिक्सल या बिट मेमोरी में इससे जुड़ा होता है, जिससे हम जान सकते हैं ये कैसे काम करता है। अब हम यही काम 2 बिट में कैसे होता है देखेंगे। यहाँ 2 बिट के हर चैनल में हेक्साडेसिमल का FF डाला जाए तो इनकी बेस 16 हेडिंग को ज़र्ब और जमा करने के बाद जो नंबर हासिल होगा वो 255 होगा। जैसे हमने पहले RGB कलर्स में देखा था, यहाँ यही काम हेक्साडेसिमल में 2 बिट से कर रहे हैं। इस मिसाल में लाल रंग हेक्साडेसिमल की पहली 2 बिट्स को FF करके और बाकी 4 बिट्स को 0000 करके हासिल कर रहे हैं। हमने देखा कैसे नंबर्स मुख्तलिफ नंबर सिस्टम यानी बाइनरी हेक्साडेसिमल के जरिए कंप्यूटर में हासिल होते हैं, मगर हमने ये नहीं देखा कैसे अंग्रेजी हरूफ तरजीह बाइनरी और हेक्साडेसिमल से हासिल होते हैं। अब हम ये देखते हैं। जाहिर है जब हम कोई लफ्ज कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो हमें बाइनरी शक्ल में ही हमें मिलता है। यकीनन हमारे कीबोर्ड की किसी लफ्ज की को दबाने से नंबर का मिलना हम नहीं चाहते, बल्कि इस लफ्ज को चाहते हैं जो हमने कीबोर्ड में दबाया हो। इस मकसद के लिए एक चार्ट बनाया गया है जिसको ASCII कहते हैं, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस चार्ट में आप देख सकते हैं हर अंग्रेजी हरूफ तरजीह के साथ इसका बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर भी दिया गया है। इस तरह कोई भी अंग्रेजी हरूफ तरजीह हासिल की जा सकती है और साथ ही मुख्तलिफ इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स जैसे क्वेश्चन मार्क, प्लस साइन, माइनस साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, परसेंटेज साइन, कॉलन, सेमी कॉलन, @ वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। ये इतना ही आसान है वाकई जिसे आप मैट्रिक्स समझ रहे थे। I know Kung Fu. आजकल हम प्रोग्रामिंग में बाइनरी और हेक्साडेसिमल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है जो आखिर में बाइनरी में ही कन्वर्ट होती है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। ये थी हमारी बहुत ही मुफस्सिल वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के जरिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन के जरिए सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद बेल बटन को दबाकर हमारी नई आने वाली वीडियो से इस बारे में हमसे मजीद सीख सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज लावा एकेडमी को भी लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।